एवरीवन, वेलकम बैक टू द लॉ स्प्रेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ हम सभी को पता है एक पर्सनल लॉ है। और पर्सनल लॉ एक ऐसा ब्रांच ऑफ सिविल लॉ है जो कि रेगुलेट करता है किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर से रिलेटेड। वो मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, डिवोर्स से रिलेटेड हो सकता है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड होता है। ये सभी पर्सनल मैटर्स होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के। Now the question comes, who is Muslim? Muslim signifies a person who adopts the faith of Islam. A Muslim is a person who believes in Prophet, who believes that there is one God, Prophet Muhammad is messenger. To be a Muslim, two things are required which are beautifully mentioned in a verse. La ilaha illallah Muhammadun aru Rasulillah. It means Allah is one and Muhammad is his messenger. A person can be Muslim by two ways. First, by birth. If a child takes birth in Muslim family, he or she will be treated as Muslim until he renounces Islam after attaining majority. And second, by conversion. A non-Muslim who has attained majority and is of sound mind and shows his interest in Islam, he may, by any of two modes, can adopt Muslim culture. He may simply publicly declare that he has renounced his original religion and believes in oneness of God and Prophet as his messenger. He may alter kalma before Imam who gives him a Muslim name. Then the process of conversion is completed and he may be treated as a Muslim. Now let's move forward with our main topic of discussion, sources of Muslim law. The sources of Muslim law can be divided as primary source and the secondary source. The primary sources of Muslim law, such as Quran, Sunnah, Hadith, Ijma, and Qiyas. If we talk about the most important primary source of Muslim law, that is the Quran. The word Quran has been derived from Arabic word Qurra, which means to read. We consider Quran as divine communication, the first source of Muslim law, and also we consider Quran as universal authority of Muslim law. जो भी मुस्लिम पर्सन्स हैं वो सब गवर्न किए जाते हैं कुरान के जरिए, और कुरान को हम एज अ यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ भी मानते हैं। ये सबसे अहम और प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का। उसके बाद आता है सुन्नत, द ट्रेडिशन। सुन्नत मीन्स द मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट इज द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. Some people called Sunnat as Sunni also. Please don't be confused by the name. Sunnat can be divided as three kinds: conduct of Prophet, words of Prophet, silence of Prophet. सुन्नत वो बातें हैं जो कि ओपिनियंस या फिर कोई भी बात किसी भी जरिए से, कंडक्ट के जरिए से, वर्ड्स के जरिए से या फिर चुप्पी के जरिए से प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बोली हैं जो कि उनके सामने आए हैं क्वेश्चंस, उन्हें हम सुन्नत कंसीडर करते हैं। ये हम ओरल ट्रेडिशंस मान सकते हैं जो भी प्रॉफिट के द्वारा दिए गए हैं किसी तीन तरीके से: कंडक्ट, वर्ड्स एंड साइलेंस। उसके बाद आता है हदीस, ट्रेडिशंस इन राइटिंग. Hadiths were not recorded to be written during the lifetime of Muhammad. They have been preserved as tradition handed down from generation to generation by authorized person. हदीस वो बातें हैं जो कि लाइफ टाइम मतलब मोहम्मद की लाइफ टाइम में नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रेडिशन ट्रांसफर हुए हैं और जो ऑथराइज पर्सन्स हैं उन्होंने इसे प्रिजर्व करके रखा है और उन्होंने उन्हें लिखा है. जो हदीस हैं वो भी तीन प्रकार के हो सकते हैं: यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस, पॉपुलर ट्रेडिशंस एंड आइसोलेटेड ट्रेडिशंस. उसके बाद जो प्राइमरी सोर्स आता है वो है इज्मा, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन. जब कभी भी कुरान या फिर ट्रेडिशन कोई भी बात किसी भी लॉ से रिलेटेड सप्लाई नहीं कर पाते थे, बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे, कोई न्यू प्रॉब्लम जब अराइज होती थी तो उस पर क्या होता था कि जो लॉ नोइंग पीपल होते थे यानी कि जुरिस्ट, वो कुछ अपने कॉमन ओपिनियंस का यूज करते हुए उस पॉइंट ऑफ लॉ पर एक अपने ओपिनियन देते थे और उसे हम इज्मा कंसीडर करते थे. उनके जो ओपिनियंस होते थे जुरिस्ट के ओपिनियंस को हम इज्मा बोलते थे. अब इज्मा के क्या एसेंशियल्स हैं? फर्स्टली इट शुड बी डन बाय जुरिस्ट and that jurist should be a Muslim. And fourth, consensus on a religious matter. जो भी वो ओपिनियन दे रहे हैं वो किसी रिलीजियस मैटर पे
दे रहे हो। उसके बाद आता है जो हमारा लास्ट प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का, वो है कियास, एनालॉजिकल डिडक्शन। अगर हम अरेबिक लैंग्वेज में देखें तो कियास का मतलब होता है मेजरमेंट। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स मेजरिंग और कंपेयरिंग अ थिंग इन रिलेशन टू अ स्टैंडर्ड और टू एस्टेब्लिश एन एनालॉजी। कियास का सिंपल मीनिंग है रीजनिंग, अपने माइंड को यूज करना, अपनी अकल का इस्तेमाल करना। कुछ कंडीशन है, वैलिड कंडीशन है कि कियास की, जैसे कि कियास जो इसका जो ओरिजिनल सोर्स होना चाहिए कियास का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिडक्ट कर दे कुछ जनरल नेचुरल बातों को। वो कुरान, हदीस, सुन्नत, इनमें जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं उससे अलग बात ना करे कुछ ज्यादा, वो इनको रिपील ना करे। कोई भी जो लॉ है वो उसमें हम ऐसा लॉ ना बना दें या बोलें जो कि लोगों को समझ ही ना आए, वो समझ भी आना चाहिए। और जो भी हम कियास अप्लाई कर रहे हैं वो एक पॉइंट ऑफ लॉ पर होना चाहिए और उसका कोई ना कोई डिटरमाइंड मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है। The secondary sources of Muslim law, that is, first, urf means custom, second, legislation, third, judicial decision, and the fourth, equity, justice, and good conscience. First, if we talk about urf, that is the custom, customs were never formally recognized as a source of Muslim law, though it has been occasionally referred to as supplying the law. The Muslim law include many rules of pre-Islamic custom in it by express or implied recognition. जो भी उर्फ है, ये कस्टम है, उसे हम फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ लॉ नहीं मान सकते। इसके अंदर हम इसको एज ओकेजनली सप्लाई ऑफ लॉ मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अगर हम देखें तो हमें कुछ प्री इस्लामिक कस्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली रिकॉग्नाइज्ड है मुस्लिम लॉ के अंदर। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वैलिड रिक्वायरमेंट्स है कस्टम की, जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पहली, it must be territorial. Second, it must be immemorial. Third, it must be ancient. And fourth, it must not oppose public policy in the following matters, that are agricultural land, testimony, succession, charities other than birth. Now, the second important secondary source come as legislation. इंडिया में जो भी मुस्लिम लोगों से रिलेटेड या मुस्लिम सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्टेन legislations बने हैं, such as the Shariat Act 1937, Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the Prohibition of Child Marriage Act 2006, ये सब कंसीडर किए जाते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स अंडर द हेड ऑफ लेजिस्लेशन। देन आफ्टर जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो भी डिसीजन प्रीवीसी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं डिसीजन, उन्हें हम एज अ जुडिशियल डिसीजन या जुडिशियल प्रेसिडेंट कंसीडर करते हैं। देन द फोर्थ, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, जो भी हम जस्टिस है, इक्विटी है, हम एक अच्छे से सबको इक्वली रख के जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसे भी हम एज अ सोर्स कंसीडर करते हैं मुस्लिम लॉ का। नेक्स्ट जो मैं ये स्लाइड शो कर रही हूँ, इसमें मैंने एक समराइज वे में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को नोट डाउन किया हुआ है, आपको शो किया है स्क्रीन पे। प्लीज एक बार आप गो थ्रू कर लेना। होप सो आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा हो।